जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 27। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। मन के स्थिर रहने की आदत के उपरांत कभी न कभी एक बार उसी स्थिरता की सहायता से मन आपसे आप आत्मस्वरूप के पास जा पहुंचेगा। फिर उस आत्मस्वरूप को देखकर वह उसके साथ मिल जाएगा। उस समय द्वैत को अद्वैत में समाधि प्राप्त हो जाएगी और उस एकता के प्रभाव से तीनों लोक प्रकाशमान हो जाएंगे। आकाश में आकाश से भी भिन्न जान पड़ने वाला मेघ दिखाई पड़ता है, परंतु उस मेघ के हट जाने पर जिस प्रकार केवल सर्वव्यापी आकाश ही बाकी बच रहता है, उसी प्रकार चित्त का भी लय हो जाता है और सब कुछ चैतन्य के ही रूप में दिखाई पड़ता है। इस सहज मार्ग से इस प्रकार की फल प्राप्ति होती है। सुप्रीम इटर्नल प्योर एंड uninterrupted bliss comes to the yogin who has through constant practice attained perfectly serene mind, who has calmed his passionate nature, who is free from sin, who has not realized but has also established in the self. Such a one becomes a Jivan Mukta, or one who is liberated while living, who see that all is Brahman only. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 6 ശ്ലോകം 27. മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശാന്തമായിരിക്കുന്ന, പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായ, അഭിനിവേശം ശാന്തമായ സച്ചിദാനന്ദഘൻ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യപ്പെടുന്ന യോഗി പരമാനന്ദം പ്രാപിക്കുന്നു. ആ സ്ഥിരതയുടെ സഹായത്തോടെ എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിനെ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്ന ശീലത്തിന് ശേഷം മനസ്സ് യാന്ത്രികമായി അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലെത്തും. പിന്നെ ആ സ്വരൂപത്തെ കണ്ട് അവൻ അതിൽ ലയിക്കും. ആ സമയത്ത് ദ്വൈതം അദ്വൈതത്തിൽ സമാധിയിലെത്തും. ആ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഫലത്തോടെ 3 ലോകങ്ങളും പ്രകാശിക്കും. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മേഘം ദൃശ്യമാകും. എന്നാൽ ആ മേഘം മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സർവ്വവ്യാപിയായ ആകാശം മാത്രമേ അവശേഷിക്കൂ. അതുപോലെ മനസ്സും അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു, എല്ലാം ബോധമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ ലളിതമായ പാത അത്തരം ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 6 श्लोक 27. ज्या योगीचे मन पूर्णपणे शांत आहे तो पापमुक्त आहे आणि ज्याची आवड शांत झालेली आहे, जो या सच्चिदानंद घन ब्रह्माशी एकरूप झालेला आहे, तो परम आनंद प्राप्त करतो. मनाला स्थिर ठेवण्याची सवय लावल्यानंतर एक ना एक दिवस या स्थिरतेच्या मदतीनेच मन आपोआप त्याच्या खऱ्या स्वरूपात पोहोचेल. मग त्या स्वरूपाहून तो त्यात विलीन होईल. त्यावेळी द्वैत अद्वैतात समाधी प्राप्त करेल आणि त्या एकतेच्या परिणामाने तिन्ही जग प्रकाशित होतील. आकाशापेक्षा वेगळा दिसणारा ढग दिसतो, पण जेव्हा तो ढग निघून जातो तेव्हा फक्त सर्वव्यापी आकाशच उरते. तसेच मनाचे देखील आहे.
मन जेव्हा विरघळते आणि सर्व काही चेतनाच्या स्वरूपात दिसते, हा सोपा मार्ग अशा परिणामाकडे घेऊन जातो. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుత పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ బాజీ మహారాజ్ వారి పెద్దమాజీ బండ ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయము 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 27. ప్రశాంత మనసం హీనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంత రజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషం. ఎవరి మనసు బావుగా శాంతించిందో, ఎవరు పాపరహితుడో, ఎవరి రజోగుణం శాంతి నొందినదో, సచిదానంద పరబ్రహ్మతో ఏకాభావం పొందిన అటువంటి యోగికి ఉత్తమ ఆనందం లభిస్తుంది. మనసు స్థిరంగా ఉండే అలవాటైన తర్వాత ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఒకసారి ఆ స్థిరత్వ సహాయంతో మనసు తనంతట తాను ఆత్మస్వరూపం చెంతకు వెళ్తుంది. పిమ్మట ఆ ఆత్మస్వరూపమును దర్శించి అది దాంతో కలిసిపోతుంది. అప్పుడు ద్వైతమునకు అద్వైతములో సమాధి స్థితి లభిస్తుంది. ఆ ఐక్యతా ప్రభావంతో 3 లోకాలు ప్రకాశవంతమవుతాయి. ఆకాశంలో ఆకాశం కన్నా భిన్నముగా కనబడే మేఘాలు కనిపిస్తాయి. అయితే ఆ మేఘాలు తొలగిపోయిన పిమ్మట కేవలం సర్వవ్యాపి అయిన ఆకాశమే మిగిలి ఉంటుంది. అదే ప్రకారంగా చిత్తము లయమైనప్పుడు సమస్తము చైతన్య రూపంగా కనిపిస్తుంది. ఈ సహజ యోగ మార్గముచే ఈ విధమైన ఫలితం లభిస్తుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम. कियाक तऽ जिनकर मोन नीक सँ शांत भऽ गेल छनि, जे पाप सँ रहित छथि आ जिनकर रजोगुण शांत भऽ चुकल छनि, एहन सच्चिदानंद घन ब्रह्म संग एक ही भाव भेल योगी के उत्तम आनंद प्राप्त होइत अछि. मौन के अस्थिर रहला के आदत बनि गेलाक बाद कखनो काल ओहि स्थिरता के सहायता सँ मौन अपने आप आत्मस्वरूप लग पहुँच जाइत अछि. फेर ओ आत्मस्वरूप के देख कऽ ओकरा संग मिल जाइत अछि. ओहि काल में द्वैत अद्वैत में लय भऽ जाइत अछि आ ओहि एकता के प्रभाव सँ तीनू लोक प्रकाशमान भऽ जाइत अछि. जेना आकाश में आकाश सँ फराक मेघ देखाइत अछि, मुदा मेघ हटि गेला पर मात्र सर्वव्यापी आकाशे बचल रहैत अछि, ओहि प्रकार चित्तो लय भऽ जाइत अछि आ सब किछु चैतन्य रूपे में दिखाई दैत अछि. एहि सहज बाट सँ एहन फल प्राप्त होइत अछि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.